ہم پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی تیسری اور چوتھی 2 آیات. یہاں لکھا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. کہیے آمین, کہیے ہاللیلویا. تو ان آیات میں 3 سچائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور یہ سچائیاں ایسی سچائیاں ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا. 3 سچائیاں. پہلی سچائی مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا. دوسری سچائی دفن ہوا. تیسری سچائی کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. تو پولس نے کرنتھیوں کو ایک خط لکھا اور کہا یہ بات مجھے میرے پاس پہنچی اور میں نے تمہیں بھی پہنچا دی. آگے 3 سچائیاں ہوئی کہ یسوع مسیح ہوا, دفن ہوا اور جی اٹھا. پولس رسول اپنے دوسرے مشنری سفر کے دوران تقریباً 1.5 سال کرنتھس میں رہا اور انہوں نے خوب منادی کی, کلیسیا قائم کی اور ان کو پوری تعلیم دی. اور کچھ باتیں ظاہر رہ گئی ہوں گی یا اگر نہیں بھی رہی تو کچھ باتیں خدا نے اس کے دل میں ڈالی کہ ان کو ریپیٹ کیا جائے. اور غالباً یہ خط جو ہے تیموتھیوس کے ہاتھ بھیجا کرنتھیوں کو. اور کرنتھس کی کلیسیا کو جب خط لکھا تو اس نے پہلے بھی یہ باتیں, ظاہری بات ہے اگر وہ مرنے جیتنے کا ذکر نہ کرتا تو کلیسیا کیسے بنتی. اس کا مطلب ہے پہلے بھی بیان کر چکا ہے لیکن اتنی اہم تعلیم ہے کہ دوبارہ لکھ رہے ہیں ان تینوں سچائیوں کے بارے میں کہ یہ کتاب مقدس کے مطابق ہے. یعنی ان کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, صحائف میں, اہل حدیث میں ہو چکا ہے تو انہیں کا ذکر پولس کر رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. قیامت المسیح ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. 3 سچائیاں ہمارے عقیدے کا بنیادی نقطہ ہے. اور ابھی میں صرف ایک سچائی پہ بات کروں گا. میں نے تینوں باتیں بتائی ہیں, ابھی میں کس سچائی پہ بات کروں گا بتائیے, آپ بولیے گا. ابھی میں پہلی سچائی پہ بات کروں گا. اور پہلی سچائی کیا ہے؟ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا. یہ زور ہے اس بات پہ, گناہوں کے لیے. ایسے نہیں ہوا, ہمارے گناہوں کے لیے ہوا. تو اس پہلی سچائی پہ ہم بات کریں گے. یہ پیغام کہ یسوع ہوا تاریخی حقیقت ہے اور یسوع مسیح کا مرنا ہمارے گناہوں کے لیے زندگیاں بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. یسوع کا مرنا زندگیاں بدلنے کا ذریعہ ہے. پہلی سچائی مسیح ہوا. اور کیوں ہوا؟ بات یہ ہے کس لیے. وہ تو آیت کے اندر ہی لکھا ہے کہ ہمارے گناہوں کے لیے, لیکن وہاں لکھا ہے کتاب مقدس کے مطابق. تو آئیے پرانے احکام میں سے جو پروفیسی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. یسایہ چیپٹر 59 ورس 2 یہاں لکھا ہے باقی تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے گویا روپوش کیا ہے ایسا کہ وہ تمہاری دعا نہیں سنتا. یسایہ کہتا ہے کہ گناہ نے انسان کو خدا سے دور کر دیا تھا. واقعہ آپ کو معلوم ہے باغ عدن میں کس کس نے گناہ کیا؟ آدم نے, ہوا نے, مطلب ساری انسانیت نے گناہ کیا. ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا. گناہ کے باعث آدم اور ہوا خدا سے دور ہو گئے, جدائی کی دیوار ہو گئی. اب خدا سے دور ہونا, جدائی کی دیوار ہونا, یہی وجہ ہے کہ مسیح کو مرنا پڑا تاکہ وہ جو جدائی کی دیوار بن گئی ہے گناہ اس کو ڈھا دے اور ڈھا کے بچھڑے ہوئے انسان کو خدا تک ملا دے. ہاللیلویا, بولیے ہاللیلویا, کہیے ہاللیلویا. خدا ہماری دعا بھی نہیں سنتا تھا, گناہ کے باعث خدا دعا نہیں سنتا اور ہمارے درمیان خدا اور ہمارے درمیان جو جدائی کی دیواریں گناہ ہے
और इसी जुदाई की दीवार को गिराने के लिए यीशु मसीह हुआ। बोले हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये जो जुदाई है मैंने आपको बताया बाग एदन में शुरू हुई, और बाग एदन में जब जुदाई शुरू हुई तो निकाल दिया गया, तो उसके बाद खुदा ने प्लान किया, एक मंसूबा बनाया कि कोई तरीका हो कि आदम वापस आ जाए, जुदाई की दीवार टूट जाए। लिहाजा खुदा नबियों को भेजता रहा, शरीयत को भेजा, और बहुत सा कलाम, बहुत सी प्रोफेसी खुदा ने दुनिया के लिए भेजी ताकि लोग गुनाह से बच जाए। लेकिन कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, जरूरी था कि वो शख्स आता गुनाह को दूर करने के लिए जिसमें खुद गुनाह नहीं है। अगर कोई खुद गुनहगार है, वो कैसे किसी गुनहगार को खुदा के पास ला सकता है? यीशु के बारे में लिखा है कि उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था, और यीशु ने खुद मेरे से कहा, तुम में से कौन मुझ पे गुनाह साबित कर सकता है? आज तक दुनिया का कोई शख्स यीशु मसीह में गुनाह साबित कर ही नहीं सका। करने की कोशिश है, यीशु मसीह जिंदा है और जिंदा रहेगा, गुनाह से पाक है, पवित्र है, शैतानी है, मुकद्दस है, गुनाह से मुबर्रा है, और जो गुनाह से मुबर्रा हो कोई गुनाह को उठा सकता है। बोलिए हालेलुया। अब आते रहे बड़े लोग, निजात की तालीम देते रहे, सिर्फ इत्तला देते रहे, इन्फो देते रहे, इंफॉर्मेशन देते रहे कि गुनाह से बच जाओ, लेकिन गुनाह से बचने का जो हल है वो कुर्बानियों में भी नहीं था। अहवाल की किताब में कुर्बानियों का जिक्र है, और बनी इस्राएल कुर्बानियां देते थे, सरदार काहिन उन कुर्बानियों का खून लेकर पाक तीन मुकाम में छिड़कता था, और ये सिलसिला चलता रहता था। तो गुनाह किया, कुर्बानी दे दी, गुनाह किया, कुर्बानी दे दी, फिर गुनाह, फिर कुर्बानी, फिर गुनाह, फिर गुनाह, फिर कुर्बानी। ये तसलसल चलता था साइकिल के पहिए की तरह। लेकिन इंसान गुनाह से बच ना सका, फिर यीशु मसीह को आना पड़ा, और उसने सलीब पर जान देकर उस आदम को जो गुनाह में था अपने कीमती लहू से खरीद लिया। हालेलुया। और सिर्फ उसी को खरीदा, कोई खरीद सकता है जो खरीदने के काबिल हो। दुनिया के जितने नबी पैगंबर आए, उनकी वैल्यू यीशु की वैल्यू के बराबर नहीं थी। लिहाजा खुदा उन्हें दुनिया के गुनाहों की जाने के लिए कभी कबूल नहीं कर सकता था। ऐसा शख्स आना चाहिए था जो पूरी पूरी कीमत अदा कर सके, जो खुद गुनाह से भरी हो, जिसने खुद गुनाह ना किया हो। और खुदा ने यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल कर लिया। बर्रों की कुर्बानी को नहीं कबूल किया, बच्चों की कुर्बानी को कबूल नहीं किया, और यीशु मसीह कुर्बान का उसने हमारी अवधि खलासी कराई। हालेलुया। क्या किया करेंगे इसमें? इब्रानियों 9 बाब 26 है, वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। सुनिए, अगर बर्रे और बछड़ों की कुर्बानी बार बार होती थी, अगर यीशु मसीह का कुफारा भी ऐसा ही होता, तो ये आयत कहती है फिर यीशु मसीह को भी बार बार दुख उठाना पड़ता। लेकिन यीशु मसीह खुदा का बर्रा है, जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। आयत को कबूल कीजिए, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा दिया जाता है। सिर्फ वही उठा सकता था, वरना अगर वो बकरों की तरह होती तो यीशु मसीह का लहू होता तो उसे बार बार कुर्बानी देनी पड़ती। लेकिन लिखा एक ही बार उसने कुर्बानी देकर गुनाह को मिटा। बोले हालेलुया। और यीशु मसीह की कुर्बानी इंसाने की कुर्बानी थी, कुफारे की कुर्बानी थी, कीमत अदा करने की कुर्बानी थी। गुनाह की बहुत बड़ी कीमत थी जो जुदा पे करनी थी और खुदा के सामने पेश करनी थी, और वो सिर्फ यीशु ही कर सकता था। वो अपना ही खून लेकर किबरिया के दाहिने हाथ बैठ गया, खुदा तक पहुंचा। सुनिए गौर से, काहिन जानवरों का खून लेकर, सरदार काहिन जो थे वो हैकल में पाक की मुकाम में खून छिड़कते थे, फिर बखूर जलाया जाता था, फिर उसकी धुआं उठता था। लेकिन इधर यीशु अपना ही खून लेकर आसमान पे चला गया बाप के पास, और हमारी अवधि खलासी कराई। हालेलुया।
सच्चाई क्या है? यीशु मसीह हमारे गुनाहों का लिए हुआ। अच्छा, अगर मैं अभी ये सवाल करूं कि कितने गुनहगार हैं, तो काफी हाथ खड़े होंगे। मैं भी हाथ खड़े करवा, अगर मैं कहूं हाथ खड़ा करें कितने गुनहगार हैं, काफी हाथ खड़े होंगे। तो फिर क्या फायदा होगा यीशु की कुर्बानी का? अभी भी गुनहगार, कुर्बानी भी दे दी। तरीका क्या है गुनाह से बचने का? तरीका यह है, खुदावंद यीशु मसीह से कहे, खुदावंद यीशु मसीह तू मेरे लिए हुआ, तूने सलीब पर अपना लहू बहाया, ऐ खुदावंद मैं तेरी कुर्बानी को कबूल करता हूं और तू मेरे दिल को ले, मेरे दिल को पाक कर, मेरे गुनाह माफ कर, मैं तौबा करता हूं, मेरे दिल को अपने खून से धो के पाक कर। ये है इस पहली सच्चाई का इतलाक जो आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। अगर आप यीशु से ये नहीं कहते कि मेरे लिए मरा, मेरे गुनाहों को ले ले, तो फिर उसके मरने का भी कोई फायदा नहीं, गुड फ्राइडे मनाने का भी कोई फायदा नहीं। लेकिन जिस मकसद के लिए मरा है, अपने गुनाह यीशु को दे दे। दूसरी सच्चाई, पहली सच्चाई क्या थी? यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए हुआ, दूसरा दफन हुआ। अब ये तो आपसी बात है, जी नहीं, आम बात नहीं है। अगर यीशु मसीह जी उठा तो कैसे पता चलेगा जी उठा? खाली कब्र बता देगी। इसलिए कब्र में दफन होना जरूरी था। आप सबूत चाहिए ना आपको। अगर कोई कहते हैं सबूत क्या आपके पास? यीशु जी उठा है, मरा तो ठीक, सबके पास जी उठने का सबूत क्या है? खाली कब्र। बेशुमार लाखों लोग हर साल टूरिस्ट पूरी दुनिया से इस्राएल में जाते हैं और सुन रहे हैं, और ऐसी जगह जाके ज़ियारत करते हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं। और वो क्या है? खाली कब्र। जाकर देखते हैं खाली कब्र। गोया खाली कब्र चीख चीख कर कह रही है, सुनो, कोई था जिसकी तदफीन की गई, जो कफन समेत या दफनाया गया, मैं खाली हूं या कुछ भी नहीं है, चला के कह रही है। अगर यीशु मसीह कब्र में दफन ना होता तो हमारे पास सबूत क्या होता कि यीशु जीवित है? खाली कब्र इसका सबूत है। बोले हालेलुया, ये हालेलुया। मसीह दफन हुआ। एक शख्स जिसका नाम था यूसुफ, क्या नाम था उसका? अरमतिया का रहने वाला था और अमीर आदमी था, असर रसूख वाला आदमी था। और जब यीशु मसीह को सजा सुनानी थी कि इसको मसलूब किया जाए, तो उस काउंसिल का मेंबर था, लेकिन अंदर से ये मसीह को कबूल कर चुका था, शागिर्द बन चुका था। इसने मुखालफत की थी कि नहीं ऐसा बात करे, लेकिन लोगों की अक्सरियत कह रही थी बराबा को छोड़ दो, यीशु को मसलूब करो, लिहाजा यूसुफ की नहीं सुनी गई। लेकिन हुआ क्या? जब यीशु मसीह हुआ, असर रसूख वाला आदमी था, हुकूमत में इसके हाथ पड़ते थे, ये पिलातुस के पास गया और कहने लगा, जनाब यीशु की लाश मुझे दे दी जाए। यीशु की लाश ली, फिर उसने अपनी कब्र जो उसने अपने लिए एक गार में बनवाई थी, उसने दफन किया और एक पत्थर उसके आगे लटका दिया और कफनाया। बोले हालेलुया। तो फिर यूसुफ से पूछने जाके आसमान पे, हाँ यूसुफ भाई, क्या कैसे हुआ था? कैसे पिलातुस के पास गए थे? कैसे लाश ली थी? कैसे दफनाई थी? आपको सब पता चलेगा। यीशु मसीह दफन किया गया। बोले हालेलुया। उसकी तदफीन की गई। यशायाह 53 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, उसकी कब्र शहीदों के दरमियान ठहराई गई, मतलब कब्र थी उसकी, और कब्र में तदफीन जो है, इस बात का सबूत है कि यीशु मसलूब हुआ। जब यीशु मसीह हुआ और दफन हुआ, लोगों का ख्याल था कि बस अब काम खत्म, एंड हो गया, स्टोरी खत्म, स्टोरी का दी एंड हो गया, ये ख्याल था। लेकिन बेचारों को क्या पता था कि आगे तीसरी सच्चाई भी है। सुनना चाहते हैं तीसरी सच्चाई? हेलो, बोलिए, सुनना चाहते हैं? ये आवाज आनी चाहिए, सुनना चाहते हैं? हालेलुया। तो तीसरी सच्चाई, यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह सलीब के बाद, मसलूबियत के बाद दफन किया गया, कब्र में दफनाया गया, और तीसरे दिन बड़ी कुदरत के साथ, ऐसी कुदरत के साथ कि चट्टानें धड़क उठी, ऐसी कुदरत के साथ कि जो कब्र के ऊपर पत्थर था लुढ़का दिया,
तीसरे दिन उसे जी उठा था। लिहाजा यीशु मसीह जमीन का की धरती को तोड़कर चीर कर बड़ी कुदरत के साथ जी उठा और आज हम उसके जी उठने की मना रहे हैं। यीशु जिंदा है, कहिए यीशु जिंदा है, सब बोले यीशु जिंदा है, उनकी बात में हाथ लगा देंगे, यीशु जिंदा है। मरने का भी कोई फायदा नहीं, कब्र में जाने का भी कोई फायदा नहीं अगर यीशु जी ना हो। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। यीशु के आसमान में जाने के बाद शागिर्दों ने मनादी की। उनके पास पैगाम क्या था? क्या क्या ये मनादी करते थे? कैसे लोगों को क्रिश्चियन कर रहे थे? आप बताइए। जीव की बरादरी, लेकिन खास ये 3 सच्चाइयां पढ़ लें। इमारती किताब में ये 3 सच्चाइयां बार बार बयान की गई है। बार बार इमारती किताब में जिक्र है कि रसूलों ने जो मनादी की इन 3 सच्चाइयों की बुनियाद पर की और लोगों से कहा यीशु तुम्हारे गुनाहों के लिए हुआ, दफन हुआ और वो जी उठा है। हालेलुया। और ये मनादी सुनकर लोगों ने यीशु को कबूल किया और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानने वाले वो हैं जो ये मानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। अपने आप भी शामिल है। प्रेज़ द लॉर्ड कहिए। और ये मत्ती की इंजील के 28वें बाब में है। मत्ती की इंजील 28वें बाब की पहली आयत से 6वीं आयत तक यहां हम देखते हैं कि आज हफ्ते की रात के बाद इतवार अलल सुबह तड़के अर्ली इन द मॉर्निंग तड़के ही यीशु मसीह बड़ी कुदरत के साथ जी। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, फिर कहिए हालेलुया। कितने दिन, कौन से दिन जी उठा? तीसरे दिन। कौन से दिन जी उठा? तीसरे दिन यीशु जी उठा और वो इतवार का दिन था। इसलिए इतवार का दिन यीशु के जी उठने के बाद क्रिश्चियनों के लिए सबत का दिन बन गया। वरना बाइबल के मुताबिक सबत का दिन हफ्ता है, सैटरडे है। लेकिन हिस्ट्री बताती है, ईमान की किताब बताती है, जब यीशु जी उठा तो शागिर्दों ने हफ्तावार इबादत के लिए दिन मुकर्रर कर दिया इतवार। और ये आज भी चल रहा है क्योंकि हफ्ते की रात के बाद इतवार के दिन अलग सुबह यीशु जी उठा। इसलिए एक बात कहना चाहता हूं भाई, इतवार यीशु के जी उठने की ईद है। हर इतवार जो इतवार को छुट्टी करते सुन लें, ईस्टर को आजाद में इतवार की छुट्टी। और भाई हर इतवार यीशु के जी उठने की ईद है। हर इतवार तैयार हो के आए, खूबसूरत बन के आए, खुदावंद के घर में आए और गए हम ईद मनाने जा रहे हैं यीशु के जी उठने की। बोले हालेलुया। यीशु जी उठा। होशिया चला वापस नहीं आया। वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा कर करेगा। यीशु ने कहा, अब बहुत से सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? यीशु ने कहा जैसे यूना नबी 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्न आदम भी जमीन में रहेगा, कब्र में रहेगा। तो यूना कितने दिन कितनी रात? तो लोग कहते हैं कि यीशु ने तो कहा था कि जैसे यूना 3 दिन 3 रात कब्र में रहा, तीसरे दिन क्यों जी उठा? तीसरे दिन तो कब्र में था ही नहीं वो। यूना तो 3 दिन 3 रात था। आप क्या जवाब देंगे? इसका जवाब यह है, यीशु मसीह ने तशबीह दिया। यीशु ने तशबीह दिया कि जैसे यूना मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्न आदम जमीन के अंदर रहेगा और बार बार बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन जी उठेगा। और यीशु मसीह मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना में बार बार कहा इब्न आदम यरूशलेम को जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसे मसलूब किया जाएगा, वो दफन किया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। बोले हालेलुया। लिहाजा तीसरे दिन जी उठा है। 3 दिन रात वाली बात जो है वो एक तशबीह है कि जैसे वो मछली के पेट में रहा वैसे। आपको याद हो गया ये बात? जवाब दे सकेंगे? और अपने एंड कर रहा हूं। पहला ग्रंथियों 15वां बाब और उसकी 17वीं आयत। फर्स्ट ग्रंथियंस 15:17। कितनों का ख्याल है कि मसीह नहीं जी उठा? कोई है यहाँ पे? कोई भी नहीं। सबूत है बेशुमार। आगे किसी और दिन देखूंगा, आज पहला सबूत नहीं दिए, आज एक सबूत दिया है।
کہ قبر خالی ہے. اور دوسرا ثبوت دیا ہے کہ اگر یسوع جی اٹھا ہے تو لاکھوں نہیں اربوں لوگ مسیح پر ایمان لا چکے ہیں. اور دنیا میں سب سے بڑے جو ماننے والی تعداد ہے یسوع کو وہ کرسچنز ہیں. بولے ہاللیلویا. اب پہلا ترجمہ 15-17. اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے. مت کہیں کرسچن اپنے آپ. اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان لانا بے فائدہ. تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو. اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو اب تک گناہوں میں گرفتار ہو. لیکن تسی کہو گے کہ یار مسیح جیتے اٹھیا ہے لیکن میں تیری بھی گناہوں سے گرفتار ہوں. سوچیں کیا پھر یہ کہ اے پیارے یسوع تو ہوا دفن ہوا جی اٹھا تاکہ میں گناہوں میں گرفتار نہ رہوں. بس ایک ہی حال ہے گناہوں. میں تیرے مرنے دفن ہونے جی پر ایمان لاتا ہوں. میرے گناہ معاف کر اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر دے. میں نجات پاؤں. یہ ہے ہماری نجات کا پیغام. کتنوں کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے. خدا آپ کے ساتھ ہو. آپ اپنے آپ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. اپنے ہاتھ نیچے کریں, آنکھیں بند کریں اور سر جھکائے کریں. دونوں ہاتھ. اگر خداوند نے آپ سے کلام کیا ہے کہ یسوع کے مرنے دفن ہونے اور جیتنے کے باوجود میں گناہ میں ہوں تو آج توبہ کر کے جانا تاکہ آپ کا حقیقی اصلی ایسٹر بن جائے اور آپ دلیری سے کہہ سکیں ہے بھی ایسٹر. معافی مانگتے جائیں, توبہ کرتے جائیں, گناہ سے چھٹکارا حاصل کرتے جائیں. خود سے تو نہیں ہوگا, اس یسوع مسیح آپ کے نام اے خداوند آج کا کلام ایک ایک دل میں کثرت سے جڑ ہونا چاہیے. وہ ان بیتوں سے جانوں پر ایمان لائیں اور تجھے اپنا نجات دیتا قبول کریں. اور جو ایمان لا چکے ہیں, جو نجات دیتا قبول کر چکے ہیں, میں آئے خداوند کو تیرے جی اٹھنے کی قدرت کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل جائیں اور انجیل کی بشارت کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام.